अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जी, how many of you came with the preparation of the topic which I have given you? Now invite Mehak. Assalamu alaikum, sir. Walaikum assalam, buddy. Today I am speak about the importance of teachers in our life. A Hmm. teacher is our guide and good values. Teacher give us knowledge and good values. They help us understand what is right and wrong. Teachers motivate us to achieve our goals. In Islam, teachers are given great respect and honor. Without teachers, society cannot progress. The Prophet Muhammad was the greatest teacher of humanity. Respecting teachers lead to success in life. I have learned I have learned a lot in Zakaria sir's class. He explained every topic in an easy way. He makes us feel motivated and confident. I pray that every student get a teacher like him. Teachers like Zakaria sir are an inspiration in our life. Thank you, sir, for teaching us so well. माशाल्लाह, great मेरी बेटी, beautifully explained all the things. माशाल्लाह। आप ही मतलब क्लास में आज क्लास नहीं हो रही है, क्या बात है? मैं भी कैमरा बंद कर लूं अब ना। चलो तो ठीक है। हाँ रोशान, आप कैमरा ऑफ कीजिए अपना बेटे। खालिद आप भी, चलिए ऑफ कीजिए। अब होगी क्लास, चलिए शाबाश। हम मरियम बंद करो बेटी। अब मजा आएगा, देखिए, अरे वाह, कितना अच्छा लग रहा है ना। शाबाश। जी, खालिद आप बोलिए बेटे, ऐसी आप। माशाल्लाह वाह। समझी, Assalamualaikum. दीवारों में से आवाज आ रही, दीवारों में से। चलो बेटे बोलो, शाबाश। Assalamualaikum, sir, and Assalamualaikum, everyone. Today, my topic is important of teacher in life. Teacher play a very important role in our life. They are our guides, mentors, and friends. They help us to gain knowledge and understand the difference between right and wrong. A good teacher not only teaches lessons from books, but also teaches good manners, discipline, and respect. Teachers shape the future of a nation by education. The youth. Without teachers, no one can become a doctor, engineer, or leader. They हम्म। work hard every day to make us better human beings. We should always respect our teachers and thank them for their efforts. Thank you. ग्रेट, अमेजिंगली एक्सप्लेन्ड, माशाल्लाह। बहुत बढ़िया बेटी। अकलीमा, कम ऑन द स्टेज। Welcome everyone. My name is Akim Masra. Today's my topic is importance of teachers. A teacher is an important person in everyone's life. They help us in learning new things. They are our second parents. They go to work on the right path. They give us knowledge. They movement and inspire us to work hand. They are backbone of our society. Every student is equal in the teacher eyes. They never do very tell it. Without the goodness of teachers, we are really incomplete. We respect our teacher. Thank you. Have a nice माशाल्लाह, अच्छा बेटे, बढ़िया बोली हैं। जी, एनीबडी एल्स?
शाहीन। Assalamu alaikum, everyone. A warm welcome, a very good evening, one and all. I would like to thanks to Allah for this golden opportunity. Today I'm stand here in front all of you. I would like to thanks my honorable teacher, Zakaria sir, giving me such a wonderful chance speak on the topic importance of a teacher. So now I would like to share my view about teacher with all of you. First, why? Importance of teacher in our life. Second, why do we need teacher in our life? First of all, we need a teacher because of these many reasons. First teacher in this whole world, Prophet Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam, and greatest and famous teacher in this whole world. And second, in my view, teachers are a role model of society. He is a helpful and providing a better understanding of the child about a subject. And sometimes he is a giving a guidance right way. Every time teacher helps the student complete various tasks and heart-to-heart tasks. And sometimes teachers helps a student faces a many problems and many situations. Teacher provides a nation with doctors, engineers, scientists, lawyer, pilot, and officer, etc., etc. Teacher a person who provides a good education, a good values to a student. Teacher is a backbone of society. Without teachers, students are nothing, and society are nothing. Teaching is regarded as a noble profession who helps students learn new things. A special message for my teacher Zakaria sir. Today I want to say a few words about someone very special, my teacher Zakaria sir. He is a kind and helpful and always has a smile on his face. And he makes learning fun and explain things so clearly. Sometimes when I don't understand anything, sometimes he helps me patiently. Every day he works hard to teach us and guide us. He always teaches us good manners and how to respect others. And my last message, all of you, teachers are a unique gift from God to us. I want to say every person must respect your teachers. Thank you everyone listening to me careful. And Assalamu alaikum. अस्सलाम मेरी बेटी गजब, बहुत शानदार पॉइंट्स माशाल्लाह यू हैव एक्सप्रेस्ड हियर। बहुत अच्छा बोली है बच्ची।
माशाल्लाह तैयारी करके आए भाई। देखो जो बच्चा तैयारी करके आता है ना, वो इतना ही अच्छा बोलता है। ठीक है। तो आप लोग तैयारी करके आना चाहिए बाबू। इतना अच्छा टॉपिक दिया है मैंने, बड़ा खूबसूरत सा टीचर का। ठीक है। अब बहरहाल मेरा काम और टीचर का काम अपने स्टूडेंट को सिर्फ समझाना और बताना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। ठीक है। मैं आपको बता चुका हूं पहले। बाबू इसकी इंपॉर्टेंस और इसकी अहमियत को समझो आप। जब तक आप जबानी चीजें याद नहीं करोगे, तब तक आपकी जबान में फ्लुएंसी नहीं आएगी। यार दुनिया के एक्सपर्ट कहते हैं ये नहीं आएगी, वो सच में नहीं आएगी। अब बिलीव मी। अब होता क्या है, आप सोचते हैं अरे टॉपिक ही तो है, चलो कोई बात नहीं, प्रैक्टिस थोड़ी है। मेरे अजीज ये टॉपिक प्रैक्टिस का निचोड़ है यार। कैसे बताऊं, हाउ कुड आई एक्सप्लेन यू? ट्राई टू अंडरस्टैंड। But most of you are not going to be serious, and I have been trying to make you understand for a long time. I want every one of you to be successful in life, but you are not going to be serious. I wonder now what should I do? What shall I say? Which word should I tell you to make you ready to do all the things? क्या कहूँ, कौन से अल्फाज बोलूँ आपसे बताइए। अब आप लोग को आना चाहिए यार। मुझे कहना चाहिए था कि भाई ये वाले जो स्टूडेंट हैं इनका नंबर कल आएगा, मुझे ये कहना चाहिए था देख करके। लेकिन अब मुझे मोटिवेट करना पड़ा यार हमारे बच्चों को, थोड़ा सा मैं इनमें कुछ जान वान डाल दूं और ताकि कल को ये तैयार करके आ जाएं। है बच्चों? अब बाबू ऐसा मत करिए, अब है ना बाबू, तैयार करके होके आइए। और कुछ नहीं रखा क्या जाता है, 10 लाइन्स तो वैसे ही याद हो जाती हैं बाबू। और मैंने आपसे किसी भी बच्चे से कभी ये नहीं कहा कि आप एक बहुत बड़ा आर्टिकल तैयार करके लाना है आपको। मैं कहता हूँ सिर्फ 10 लाइन्स ले आइए यार। 10 लाइन्स तो टीचर के बारे में ला सकते हैं। आपके पास कंटेंट नहीं है, मसलन कि मैं टीचर के बारे में क्या कहूं, मसलन आपके वालिद घर पे उनसे पूछ लें कि जरा जो टीचर होते हैं उनके 5 6 7 फायदे बता दो क्या क्या होते हैं। अगर वो भी नहीं हो तो बाहर जब दरवाजे से निकलोगे तो बहुत सारे ठेले वाले खड़े होंगे। उनसे पूछना, ठेले वाला जो होता है, स्टॉल वाला, सब्जी बेचने वाला, फ्रूट्स बेचने वाला, क्या वो जो टीचर होता है उस्ताद, उसके बारे में 2 4 बातें बता दो। अरे टीचर तो सब कुछ है। टीचर आपको सब कुछ सिखाते हैं, चलना टीचर सिखाते हैं, बात करना टीचर सिखाते हैं, और बड़ों की इज्जत करना टीचर सिखाते हैं। अबे यही तो बोलना है यहाँ भी आके। जो ठेले वाले को पता है, सब्जी बेचने वाले को, बस वो हिंदी में बोलेगा, आपको अंग्रेजी में बोल देना है। कुछ नहीं है बाबू। कोशिश किया करो, आप पीछे मत हटा करो। मैं चाहूं तो आपको टॉपिक तैयार करके दे सकता हूँ। मेरी एक पूरी किताब तैयार है, जो स्पीचीज उसमें दिए हुए हैं, लेकिन मैं दे नहीं रहा वो स्टूडेंट्स को। वजह, स्टूडेंट को देकर नुकसान है मुझे। वो भी वो मैं अगर उसे वो भी तैयार शुदा दे दूंगा तो वो क्या तैयारी करेगा, वो अपना दिमाग क्या लगाएगा। इसलिए मैंने वो किताब ही नहीं लॉन्च करी भी, वो मैंने सेट कर रखी है अपने पेन ड्राइव में बस। वरना मैं चाहता उस किताब को भी छपवा के मैंने आपके हवाले कर देता कि लो भाई इसमें से 10 लाइनें याद कर लाना। उसमें 20 टॉपिक ऐसे हैं जिसमें जो 10 10 लाइन्स के हैं, और फिर बाकी टॉपिक्स वो हैं जिनमें थोड़ी बड़ी बड़ी स्पीच हैं, 4 4 5 5 मिनट की। लेकिन मैंने वो नहीं लॉन्च की, वो मेरे पास अभी भी सेव है। मैंने सोचा मैंने उस किताब को देने का कोई फायदा नहीं बच्चों को, ये अपना दिमाग इस्तेमाल नहीं करेंगे, फिर वो लिखा लिखाया मिल गया तो और बढ़िया है। कुछ लोग उसी देख के पढ़ देंगे। इसलिए मैंने वो किताब नहीं दी बच्चों को, सच में। उसका मकसद यही है कि वो किताब नहीं देनी मुझे। उसमें चूंकि मैं चाहता हूँ आप अपने अपना दिमाग इस्तेमाल करो ना यार। आपका आखिरी दिन चल रहे हैं आपके, एक तरह से। बस 1 महीना आपके पास रह गया है। अभी तक ये लेवल तो होना चाहिए ना, ये लेवल होना चाहिए बाबू। और मुश्किल नहीं है, जब करना बैठोगे तो सब हो जाएगा। देखो करने से पहले चीजें मुश्किल लगती हैं। कोई भी काम याद रखना जिंदगी में, अल्लाह पाक ने बहुत बड़ा आइडिया मेरे जहन में डाल दिया। बात तो, जो मुंह है वो तो छोटा ही है, लेकिन बात बड़ी है। आप जब भी कोई काम करेंगे, जस्ट अ मोमेंट,
जी, तो देखिए मैं क्या कह रहा था। ये बहुत बड़ी बात है जो बता रहा हूं मैं, और ये जिंदगी के आपके हर फील्ड के लिए है जो बात मैं बताने जा रहा हूं। देखो बाबू, कोई भी काम होगा, उस काम को शुरू करने से पहले आपको डर लगेगा। उस काम को शुरू करने से पहले आप सोचेंगे मैं फेल ना हो जाऊं, पता नहीं मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, पता नहीं ये कैसे होगा। आपके करोड़ आइडियाज आएंगे, पता नहीं। लेकिन जब आप उसे करने बैठेंगे तो अल्लाह पाक की मदद आएगी और आप कर लेंगे। ये मैं नहीं कह रहा हूं भाई, दुनिया के एक्सपर्ट कहते हैं ये बात। अभी आपने सुना वो डिबेट, डिबेट तो सुना होगा काफी सारे लोगों ने। किस किसी ने सुना है, जरा थम देना। अच्छा, माशाल्लाह। अच्छा जी, क्या बात है। तो बहुत सारे लोग ना, कोई है ही नहीं क्लास में जिसने नहीं सुन रखा है। वो बंदा जो डिबेट करना गया है डज गोज एग्जिस्ट के टॉपिक पे, अल्लाह पाक के एग्जिस्टेंस पे, वो बंदा कह रहा है खुद कि जब मैं जा रहा था तो मुझे लग रहा था पता नहीं मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, मैं बोल पाऊंगा नहीं बोल पाऊंगा, इतना मेरे ऊपर वो था। लेकिन जब मैं वहां करने के लिए उस चीज को गया तो अल्लाह पाक ने सारी चीजें आसान कर दी। लो जी, विनर बन के भागे भाई साहब। ठीक है मेरे भाई। तो इसलिए बाबू, ये दुनिया के किसी भी डिपार्टमेंट में आप जाएंगे, किसी भी दुनिया के, वहां पर जब आप जाएंगे, इनिशियली यू विल हैव टू फेस दिस प्रॉब्लम। ये वाली प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ेगी, पता नहीं मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, पता नहीं मैं अच्छा बोल पाऊंगा नहीं बोल पाऊंगा। और ये कुछ लोगों को इस तरह के आइडियाज आगे बढ़ने से रोक देते हैं। लेकिन याद रखना मेरे दोस्त, जो इस तरह के आइडियाज से लड़ने की ताकत रखता है ना, वो आगे बढ़ जाता है। आप अपने अंदर ताकत वो रखिए। इस तरह का दिमाग में कुछ अगर आ रहा है ना, तो आप उससे लड़िए कि नहीं यार मैं कर सकता हूं, ट्राई करता हूं, चलो यार, गलत सले सही में ट्राई करता हूं। जो बच्चा ट्राई करता है ना, ट्राई करने वाले ही सक्सेस होते हैं, ट्राई करने वाले ही कामयाब होते हैं। और जो ट्राई ही नहीं करेगा वो सक्सेस के बारे में सोच ही नहीं सकता। अच्छा, तो सक्सेस कैसे मिल जाएगी खुद तो बताओ आप यार। एक बंदा जो ट्राई भी नहीं करेगा, उस सक्सेस और कामयाबी कैसे मिलेगी मेरे भाई? खुद बताएं आप, नहीं मिलेगी। सक्सेस, कामयाबी की मंजिलें तभी तय करेंगे आप, तब कोशिश तो करें एटलीस्ट। अब कोशिश ही नहीं कर रहे। आप तो यार टॉपिक की क्या तैयारी करूं यार, वक्त निकालना पड़ेगा। बाबू सब ये करिए, आप ये करने की चीजें हैं, ठीक है? और मुश्किल नहीं है। मैं आपको कोई कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक नहीं देता, कोई पेचीदा टॉपिक नहीं देता ऐसा कि आपको लगे यार ये सर कैसे बोल रहे हैं इस पे। मैं नहीं कहता कि आप 10 लाइंस तैयार कर लाइए, पॉलिटिक्स पे लाइए, आप इन्वायरमेंट पे लाइए, आप जो माहौल है बाहर का उस पे। आप सुनेंगे भाई यार सर ने क्या टॉपिक दिया, समझ में नहीं आ रहा है तो। ऐसे में कुछ दे, टीचर के टॉपिक पे बात करनी, वालिदैन के इम्पोर्टेंस अहमियत पे बात करनी है आपको। आपको कुरान के बारे में 10 लाइनें बोलनी है फॉर एग्जाम्पल। प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आपको 10 लाइंस बोलनी। यार क्या रखा है इसमें मेरे भाई, वैसे ही बहुत नॉलेज, इतनी तो आपको वैसे ही पता है। लेकिन है क्या, वक्त नहीं निकाल पाते। और अगर थोड़ा बहुत वक्त मिल भी जाता है तो ये सोचते हैं कि चलो कोई बात नहीं, मैंने ही तो तैयारी नहीं करी, क्लास में तो सभी तैयार होकर आएंगे, तो सर को क्या पता चल रहा है ना? अच्छा, हर बच्चा यही सोच के आता तो तैयारी कौन करेगा फिर? फरिश्ते जिब्रील अमीन की टीम आएगी तैयारी करने भैया। सब लोग यही सोचते हो, अरे चलो सर को क्या पता चल रहा, मैं ही तो हूँ अकेला। और पता चला भैया जो अकेला सोच रहा था वो जैसे 6-7 भाई और नहीं, 20 ही भैया और जो भी यही सोच के आए हैं। ये कॉमन थिंकिंग की बात बता रहा हूँ आपको, है ना बाबू? तो आप, हर बच्चा ये कोशिश किया कीजिए कि यार ऐसा ना हो कि कोई वहां तैयारी ही करके नहीं आए और मैं भी ना जाऊं तो सर कहेंगे तू तो बड़ा खराब बच्चा है भाई, तू क्यों तैयारी नहीं कर गया। तो अब अगर हर बच्चा ये मेंटालिटी लेके काम करेगा, ये जहनीयत लेके काम करेगा कि यार सर को ऐसा ना हो कि कोई तैयारी करके ना आए, कम से कम मैं तो चलूं, मुझसे तो कहेंगे सर शाबाशी मिलेगी, मुझे अप्रिशिएट करेंगे सर, मोटिवेट भी करेंगे, बहुत सारी दुआएं देंगे। तो हर बच्चा जब ये सोच के आएगा तो फिर मुझे कहना पड़ेगा कि बेटे नीचे के जो 10 स्टूडेंट्स हैं इनका नंबर कल आएगा, ठीक है? और ये 7 PM तो बैच बहुत अच्छा है बाबू आप लोग का। पता नहीं आपको कौन सी नजर खा गई,
इतने अच्छे बच्चे चल रहे थे हमारे ये सब, लेकिन इनकी जो परफॉर्मेंस है पिछले कुछ दिनों से वो डाउन डाउन सी है। हालांकि चाहे तो उठा सकते हैं अपने आप को, अरे इन्हें कौन रोक सकता है। ये हमारे बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह अपने अंदर वो हिम्मत जुरत रखते हैं, ये कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन बस इनका इरादा पुख्ता हो जाना चाहिए, डिटर्मिनेशन होना चाहिए कि यार हाँ बस ये करना ही करना है, फिर इंशाल्लाह सब कुछ कर लोगे। तो जो बच्चे आज नहीं लाए हो तैयारी करके, कल 100% लानी बाबू है इंशाल्लाह। नाउ इनवाइट ब्रदर सऊद। सलाम अलैकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ जंगल में टहल रहे हो आप? क्लास कर रहा हूँ मैं। और सर असल में ये चल रहा है कई दिनों से, इसलिए मैं थोड़ा सा मतलब ये नहीं कर पा रहा हूँ। इंशाल्लाह कल टॉपिक तैयार किया हूँ, ऐसा कुरान की रोशनी में और हदीस की रोशनी में, ऐसे थोड़ा देखो। मैं सोच रहा था कि देख के बोलूँ, लेकिन कोई फायदा नहीं है देख के बोल के, इसलिए सर मैं जो हकीकत बात है वो आपको बोल दिया सर। आपकी कुछ आवाज़ तो क्लियर सी से नहीं है, मुझे ही लग रही है भाई क्लियर नहीं है औरों को भी। हाँ बुलाइए, सऊद को बुलाइए। सर ये भूल गया हूँ। और सर मैं बोल रहा था कि मेरा एग्जाम चल रहा है कई दिनों से, इस वजह से टॉपिक जो है आज भेजे में मैं देखा हूँ टॉपिक, टॉपिक लिखा भी हूँ, सर बाबू कुरान और हदीस की आपकी ना रोशनी में। वॉइस क्लियर नहीं है बाबू सऊद, देखो बच्चों के मैसेज देखिए, वॉइस आपके समझ में नहीं आ रहा क्या बोल रहे हो, शायद नेटवर्क प्रॉब्लम है। चलिए जी, ऐसी जगह आप जाएं ना जहाँ नेटवर्क हो तो हैंड रेस कीजिएगा, बुलाएंगे फिर हैं बाबू। चलिए बेहतर। शाहीन और बेटी। Sir, actually, what is meaning of Almighty? That was written behind yourself. अलमाइटी मीन्स ताला। जिसे आप अल्लाह ताला बोलते हो ना बेटी, अलमाइटी Yeah. का माना है बड़ा बेटा। What's that? बड़ा बड़ा, ये अल्लाह पाक के लिए इस्तेमाल होता है द अलमाइटी। Okay. And second, sir, I want to ask you something. आपने एक किताब के बारे में जिक्र कर रहे थे कल, आई थिंक मैं क्लास में थी बट मैं ऑन द वे थी, कि आपने लिखा है तो आप देने वाले, तो आपने क्या सबको दिया है क्या वो बुक? हाँ बेटी वो है, आप मुझे पर्सनली मैसेज करना, मैं वो 3 बुक्स ओके जो लिखी हुई हैं उसकी वीडियो आपको भिजवाता हूँ, ठीक है? अभी कर देना मुझे बेटी। ओके सर, थैंक यू। ठीक है बेटी। खदीजा। खदीजा प्लीज। नेक्स्ट। हिजबा प्लीज। हिजबा। Assalamualaikum, sir. वालेकुम अस्सलाम, प्लीज बेटी। Today's topic is importance of teacher in life. A teacher plays a vital role in shaping my life. They are not just educators but also mentors who guide me through every stage of learning. My teachers inspire me to dream big, encourage me during failures, and helps me grow both intellectually and morally. Their educators' patience and wisdom have a lasting impact on my personality. They help me discover my strengths, overcome weakness, and instill values like discipline, honesty, and hard work. A good teacher not only teaches lessons from books but also life lessons. They stay with me forever. I am truly grateful for their presence. Jazakallah, sir. माशाल्लाह ग्रेट मेरा बेटी, बढ़िया माशाल्लाह, बहुत जोरदार। अल्फिया। Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, everyone. Today I am here to present a speech on important teachers in our life. We all know the importance of teachers in our life. Teachers are the ones who teach us subject. They guide us, educate us, and shape our future. From a young age, teacher help us understand the world around us and develop the skills we need to succeed.
Thank you to all the teachers for everything you do. You make a difference in our lives. Thank you. माशाल्लाह, अच्छा बेटे, शाबाश। फातिमा कुरैशी। Assalamualaikum, sir. इस्लाम बेटा। Today I want to speak importance of teacher. In Islam, teachers are highly rewarded as guides. Prophet Muhammad Mustafa Sallallahu Alaihi Wasallam and essential for spreading knowledge. With Allah Himself considered the first teacher, they are seen as spiritual father who fulfilling the Quranic obligation to seek knowledge and elevating society and shaping the individual for success in this life and hereafter deserving respect and honor as they illuminate the path to rightness. And I also want to say a few words about my special teacher Zakaria sir. Then you are a guiding light in our lives. You correct our mistakes, inspire us and lead us toward a better future. Always gentle, you help us discover who we actually are. You all deserve all the respects. Thanks for being guideline of our life and for endless support. You showed me that kindness is strength, patience builds character, and belief in oneself can change everything. With the graduate, I carry you wisdom in my heart. Thank you for listening me. माशाल्लाह, ग्रेट बेटी, यू हैव स्पोकन ग्रेट। बहुत अच्छा बोली बच्ची। तस्लीम ब्रदर। जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सलाम। Respected teacher and my dear friends, today I stand before you to talk about a personality that Islam holds in the highest regard. That is a teacher. In many cultures, teaching just a profession. But in Islam, teaching is prophetic mission. Our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, "Innama bu'ishtu mu'alliman." I have been sent only as a teacher. By saying this, he elevated the status of every teacher and educator to a level of holiness and great responsibility. There are many reasons why teacher is so important in Islam. Islam teaches that they are heirs of the prophets. Heirs mean waris. And the prophets did not leave behind gold and silver. Actually, they left behind knowledge. Teachers are ones who carry this inheritance of light to the next generation. So without them, we would be lost in the darkness of ignorance. And like this, they are our spiritual parents. While our parents bring us into this physical world, and our teachers bring our soul into the world of wisdom. They do not teach just how to read and write. They teach us how to live with character. They teach us how to recognize our creator. They teach us how to build your great responsibility, great character. And like this, Hazrat Ali radiyallahu ta'ala said, "Ana abdun liman allamani harfan wahidan." I am a slave to anyone who has taught me even a single word. So this is level of respect in Islam. So let's promise today we must respect our teachers. We must love them, and we never hurt them and never interrupt them, because they are true architects of our and our. माशाल्लाह, great.
अमेजिंगली स्पोक ब्रदर तस्लीम, बहुत गजब की तैयारी भाई, माशाल्लाह, बहुत शानदार। देखो माशाल्लाह है ना, गजब बोल के गए हैं वो। सऊद आलम, कम ऑन द स्टेज। सलामकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, प्लीज। सर, मैं ये बोलना चाहता था। अ, सर, मेरा एग्जाम चल रहा है, थोड़ा सा टेस्ट चल रहा है। अच्छा अच्छा। एक दो दिन है, एक दिन है। असल में इस वजह से सर मैं आज लिखा हूँ सर। उसको थोड़ा सा बड़ा करके छोटा बोलने में अच्छा नहीं लगता है। कुरान की रोशनी में और ऐसे मैं सर आप जो टॉपिक दिए, मैं एक स्कूल में बोला हूँ, तो वो लोग बहुत तारीफ किए कि कहाँ पढ़ रहे हो। मतलब इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश, इसके बारे में मैं बोला था देख के। उसी के बारे में तैयारी कर रहा था सर। आज जो है वही टॉपिक बोल के आया हूँ। आज एक स्कूल में ये था। माशाल्लाह। अ, जी, तो तारीफ बहुत हुई है भाई, वाला जी मेरा साथ ये है। तो कह रहे कि माशाल्लाह। आपका जो ये है बोलने का अंदाज है, ठीक है, मतलब मेरा टीचर ऐसे ही है। तो सर इसलिए मैं वो लिख नहीं पाया हूँ। कोई इस बात नहीं बाबू, कल कल ले आइएगा। जी सर, उसको लिख। ओके, नो, इनवाइट इनवाइट। शाबाश शाबाश। कम कम। हम्म। जी सर, वो सर इसको कैसे पढ़ा जाएगा? प्रोनाउंसिएशन के ये जो क्या है, मैं तो मेरा थोड़ा गलती हो गया आज। क्या है मैं कैसे बाबू? इसको पढ़ा जाएगा? प्रोनाउंसिएशन। ना, इसमें ये रॉन्ग है। अच्छा। इसको पढ़ेंगे प्रोनंसिएशन। जी सर, इसलिए तो खैर इज रॉन्ग मुझे बोल रहे थे वो। बस वो क्या कि सबसे अच्छा बोले आपने। एक मतलब कंपनी से था लेक्चर इसमें, तो उसमें मैं गया था आज, पार्टिसिपेट किया था आज। चलिए शाबाश, कोई बात नहीं। हाँ, तो ये अल्फाज देखो, जो अल्फाज इस तरह के हुआ करे बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले, उनको आप लोग लिख जी भी सर। लिया कीजिए और कई बार सुन जी लिया सर। कीजिए। ये तो सब रिकॉर्ड हो रहा है ना, क्लास रिकॉर्ड हो रही है, आपकी बात भी रिकॉर्ड हो रही है, मेरी भी रिकॉर्ड हो रही है, कितनी बार सुना जा सकता है किसी भी वर्ड को। तो प्रोनंसिएशन, प्रोनंसिएशन, प्रोनाउंसिएशन। सिएशन। सर मैं टॉपिक जो है और है, एक हफ्ते बाद है स्कूल में, मुझे बुलाया गया। उन लोग का अच्छा लगा, तो कह रहे कि नेक्स्ट जो है वो आपको बुलाया जाएगा सर। उसके लिए आप एक टॉपिक दीजिएगा मुझे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह आपको बहुत जगह बुलाया जाएगा बाबू, इंशाल्लाह। और जो जो बच्चे तैयारी कर गए हैं उनको भी बहुत जगह बुलाया जाएगा, आप देखते रहना। अभी तो फिलहाल तैयारी करो आप, ठीक है? जी अभी ये सर। इस वक्त जो आपका वक्त है, ये सब तैयारी का है बाबू। खूब अच्छे से तैयार हो गया हो, खूब बढ़िया से, है ना, ताकि आपके पास बहुत सारा मवाद, बहुत सारा कंटेंट आपके पास इकट्ठा हो जाए, ठीक सर है? आप जो बोले हैं याद करना, ये सही बात है। मैं भी वहाँ पढ़ रहा था जामिया में। तो जो है कह रहे कि जितना मवाद याद कीजिएगा, जितना नुसूस याद कीजिएगा, उतना नए नए अल्फाज का जखीरा होगा आपके पास। और बोलने का जो ये है वो बोल लीजिएगा अच्छे से। हम्म। हाँ, असल में स्टूडेंट की तादाद यूं ही कम है कि उनको पता है ना कि अगर हम क्लास में जाएंगे और तैयारी की नहीं तो सर पूछेंगे कि भाई साहब क्लास में क्यों आए हो। तो उन्होंने जी सोचा सर। कि वही है ना, कि वो एग्जाम्पल, वो एक सर मिसाल दी क्लास जाती में मुझे चिढ़ाते क्यों है? मैं इस तरह बोलता हूँ तो कह रहे कि तुम अमेरिका जाओ। मुझे बोलते हैं सर। है। नहीं, माशाल्लाह आप अच्छा बोलते हो बाबू, ऐसे ही आप तरक्की करते रहिए हैं। चलिए, अच्छा है, माशाल्लाह। मिलते हैं भाई बच्चों, अच्छी बात है। अस्सलाम वालेकुम।